चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 3 एस्पेक्ट्स एंड स्कोप की। व्हाट इज Chandrayaan 3? So there have been three missions of Chandrayaan 1, 2 and 3. So Chandrayaan 1 was back in 2008. So 2008 में the mission was just to circle around the moon and study the moon surface. There were some achievements as well. For the first time, India discovered water on the moon in Chandrayaan 1. Okay, in 2008. Chandrayaan 2 was a follow-up mission. This time it was an advanced mission where it was supposed to land on the surface of the moon. But as it did not happen, so we had to take up the third mission, that is Chandrayaan 3. Okay, so Chandrayaan 3 is a follow-on mission to Chandrayaan 2 to demonstrate end-to-end capability in safe landing and crewing on the lunar surface. So why do we need to demonstrate the capability to land on the surface? Because we are planning to land the astronauts on the moon by the end of 2024 or by starting of 2025 is the target. So this mission was taken up to understand and to demonstrate the capability of safe landing. The mission objectives of Chandrayaan 3 as given by ISRO on its website is to demonstrate safe and soft landing on lunar surface, to demonstrate rover roving on the moon and conduct in situ experiments. In situ means we will go there, we will collect the samples and we will do experiments on the surface and the results will be sent to the ISRO through communication channels. Nothing will be brought back. Okay, this is the mission of Chandrayaan 3. Now, why was this Chandrayaan 3 mission appreciated? Because you आपने सुना होगा कि मून की साउथ पोल पे एक्सट्रीम साउथ पोल पे लैंड किए. So ISRO was appreciated that it was the first country to land on the extreme south of moon south pole. Why this achievement is big? Because the south pole of the moon, the extreme south, is a very hard terrain. It is not a smooth surface. Okay, so the difficulty is high. If we are investing so much, and when our lander lands there, if there is not a smooth surface, it may topple, it may not uh, go forward, or it may break down on the impact. And the surface is also frozen for eternity because there is no sunshine, and so there may be a soft surface. So when it lands, it may get stuck there. So it is a very volatile zone, but there are advantages as well because it is not contaminated. It has been hidden from the sunlight, so there's very high chance that we can make new discoveries there. Okay, so that's why it was appreciated that India was the first country to land on the extreme south of moon. Okay, so let's understand the technical aspects. कि ये क्या होते हैं पेलोड्स वही मेन सिंपल चीज आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज फॉर द राइटर इट्स अ पेन, फॉर अ कैमरामैन इट्स द कैमरा. द पेलोड्स आर द इंस्ट्रूमेंट दैट सॉल्व्स द मेन mission or purpose of the mission. Okay, so there were various payloads. Now let's understand Chandrayaan has three parts. Okay, main thing is rocket. Rocket will take you outside the atmosphere, and then there will be propulsion module. What is a propulsion module? After that, the propulsion module will propel you from one orbit to the other. Okay, this is a propulsion module. So there are two components, the rocket and the propulsion module. Their main aim is to take the rover and the lander to the orbit of the moon or to the surface of the moon. Okay, so there are three parts of the Chandrayaan 3: lander payloads, rover payloads, and propulsion module payload. Okay, there will be three different kinds of instruments which will be used to test different components and different things. Okay, so these are the lander payloads. अब लैंडर क्या करता है? लैंडर विल स्टे ऑन द सरफेस. एज इट लैंड्स ऑन द सरफेस, wherever it lands, it will stay there. So there are four payloads attached to the lander. First is Rambha. So what will it do? Because as we study the surface of the earth as well,
सबसे पहली चीज क्या होती है कि द आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बिकॉज दे डू नॉट डिके। सो अगर जब डिके नहीं होता तो उससे क्या होता है कि द हिस्ट्री एंड द पैलियोंटोलॉजी विल अंडरस्टैंड इन द साइंस कि जो पुरानी जितनी भी आप एज ऑफ द मून और एज ऑफ द सरफेस, मेनली द सरफेस, कि वहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपेरिमेंट ऑन द आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, द पेलोड यूज्ड इज रंभा। ओके, देयर इज a very big radio anatomy of moon bound hypersensitive. So just एक बार देख लो, थोड़ा सा याद हो जाए तो कभी प्रीलिम्स में अगर आता है तो माइंड में थोड़ा बैक ऑफ द माइंड रहेगा। इतना आपको डिटेल में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्टली देयर विल बी नो डायरेक्ट क्वेश्चंस कि हाँ इसकी आप डेफिनेशन ही बताओ, बट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है। चेस्ट एंड द सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, तो सिंपल कि हाँ थर्मल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए चेस्ट। इल्सा, लूना सीस्मिक एक्टिविटी, ठीक है, कि वहाँ की सरफेस में क्या सीस्मिक एक्टिविटी है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रस्ट एंड द मेंटल ऑफ लूना सरफेस, इसके लिए है इल्सा। एंड देन देर इज LRA फ्रॉम नासा, इसको याद कर लेना, दिस कैन बी important. Laser retro refractor array from NASA, because it is from NASA, so the question may be asked you what was the component that was given during Chandrayaan 3 mission by NASA. Okay, it is a passive experiment to understand the dynamics of the moon system. Dynamics is the atmosphere, the surface, the different components of the soil. ठीक है, ये होती है डायनेमिक्स। अब रोवर है। रोवर सबसे ज्यादा जो हमने न्यूज में देखा, काफी न्यूज कवरेज हुआ, वो रोवर का हुआ। रोवर हैज मूव्ड 10 सेंटीमीटर्स और 1 मीटर। ओके, सो द रोवर इज, सबसे जो मेन था रोवर था, बिकॉज टू थ्रू रोवर वी अंडरस्टूड द कैपेबिलिटी टू एक्सप्लोर थ्रू द मून सरफेस। ओके, सो रोवर हैज टू पेलोड्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप, they use light technology to understand the components of the and the chemical components of the lunar surface। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे सॉइल की सॉइल समझते हैं, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल हैव डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस, ऐसे ही लूनर सरफेस की डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होगी। और दूसरा है उसको भी ब्रेक डाउन करके, व्हेन वी ब्रेक डाउन द सॉइल एज वेल, कि उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, टू स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन मून सरफेस, इट इज कॉल्ड एपेक्स और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, बट अब जैसे अपना इसरो तो जानते ही सब कुछ यूज करता है, और नॉट जस्ट इसरो, all the other space organizations as well, if they have sent a mission, they will use every component। so propulsion module जिसका काम सिर्फ उनको वहां तक पहुंचाना था, उसमें भी क्या एक पेलोड है, दैट इज कॉल्ड शेप और स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये क्या है, जब हम अदर प्लैनेट्स को अर्थ से स्टडी करते हैं, सो देयर विल बी अ डिफरेंस फ्रॉम, अगर हम उसे एटमॉस्फेयर पे के बाहर जाके स्टडी कर सकें, we will get better readings, right? So propulsion module is going outside the atmosphere, so we have attached a payload called shape for to understand future discoveries of smaller planets and reflected light, so to understanding and studying the light। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स ये टेक्निकल है, टेक्निकल इज मोस्टली नॉट आस्क्ड डायरेक्टली, बट what is mostly asked whenever we answer a question related to technology or science, so we have to understand all the aspects, the historical aspects. Why historical aspects? Because how we reached to Chandrayaan 3। ठीक है, उससे पहले कौन कौन से मिशन थे, वर दे सक्सेसफुल, was there a failure, what were the budgets, ठीक है, what was the contribution from other space organizations, and what were our contribution towards the other space organizations। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री, एज आई टोल्ड यू,
Chandrayaan 1 was launched in 2001. The biggest achievement was that it was able to find water on the moon surface. Okay, to upgrade, Chandrayaan 2 was launched in 2019. So it was supposed to be the ISRO's first lunar lander. But just before the touchdown, the ISRO lost contact with the lander, so the mission was not a successful mission. So to rectify the mistake, this mission, the Chandrayaan 3 was carried out. ठीक है अब let's understand कि कैसे है हर कोई इसरो की तारीफ करता है कि भाई बहुत ही सस्ते में कर देते भाई even the interstellar movie cost more than the Chandrayaan 3 mission. So people are going, how ISRO achieves that kind of feat? Because देखो इसरो चीफ ने भी कहा है कि the rockets, the biggest cost difference are caused by the rockets used in the missions. Okay, so होता क्या है कि when we send a mission, we use the energy of the orbits to launch mission. Okay, we will just use smaller rockets and put our Chandrayaan on a orbit. Okay, the propulsion will then this will take some time, revolve around the orbits. Then propulsion module will shift the orbits. So what it does, it takes time. Okay, to reach the moon, it will take time. But if we have a bigger rockets, it can directly pierce through the orbits, yeah, and reach the escape velocity and enter the moon's surface, moon's atmosphere. So bigger rockets cost more. So other space organizations like Roscosmos of Russia and NASA, they use bigger rockets, so their budgets are very big. But as we get a lesser money from the government, ISRO has constantly been getting lesser money from the government, and that's why they try to use whatever money they get, and they really use science for their purposes. So let's understand budget of Chandrayaan 3. अब इसमें और भी क्या चीजें होती हैं कि जैसे हम नासा की वो तारीफ करते हैं कि नासा has done so many things, but what NASA does is it will delegate its mission to private space organizations. Okay, वो एक plan तैयार करेंगे and that plan will be sent to private space organizations. They have over 5,000 private space organizations. Some of the that SpaceX, Elon Musk की सभी जानते हैं, वर्जिन गैलेक्टिक और भी बहुत सारी हैं. तो वो क्या करते हैं कि आउटसोर्स कर देते हैं अपनी चीजें. They will set a plan, they'll give them money and they will just whatever they need, the rockets or the components, they will get back from those vendors. Okay, so इसलिए वहाँ पे मिशन बहुत कॉस्टली होते हैं. But what ISRO will do, it will get components from the other organizations, but वो अपने इन हाउस वेंडर्स यूज करती है उनको एसिमुलेट करने में. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कट कॉस्ट. ठीक है, तो एक स्टेप हो गया बिकॉज हम इन हाउस इसरो ज्यादातर चीजें इन हाउस बनाती है और इंडस्ट्री को छोटे छोटे वेंडर्स यूज करती है, इसलिए हमारे कॉस्ट कटिंग हो जाती है. और कॉस्ट सेविंग कैसे होती है? वजन प्रोपल्शन. प्रोपल्शन में ओनली जो अभी बताया मैंने, द बिगर रॉकेट, द स्मॉलर द रॉकेट, स्मॉलर द बजट. ठीक है, सो इसरो's budget of Chandrayaan 3 was around 600 crores. The most recent from Luna 3 from Russia that failed, it had the budget of 1600 crores. So compared to that, less about 1 by third from Luna 3, and it failed. So that's a great feat for ISRO. Okay, so that was budget. अब historical aspects हो गए, बजट हो गए. अब क्या? इकोनॉमी. इकोनॉमी क्या होती है कि देखो स्पेस हम एक गवर्नमेंट की तरह देख रहे हैं बिकॉज इसरो इज a government organization, so this is achievement of the government, but it can actually provide in economical sense बहुत ही boost दे सकती है to our economy. How? Because the present space industry
is valued around 546 billion US dollars. Okay, and India is supposed to grow to 13 billion by 2025. So very small component of the global industry is occupied by India. But as we know, India has great potential. ज़्यादातर साइंटिस्ट जो है वहाँ नासा imports from India 30 to 40% जो वहाँ के साइंटिस्ट कम्युनिटी है is formed of the Indian community of Indian scientists. So India has a very large scope to grow in the India's space economy. और क्या करेगा जब मिशन सक्सेस होते हैं तो उन पे फेथ बढ़ती है. द इकोनॉमीज बिगेस्ट फैक्टर इन ग्रोथ इज फेथ. जब स्टॉक मार्केट भी फेथ पे काम करती है, ऐसे ही स्पेस इंडस्ट्री भी है जो कि फेथ पे काम करती है. सो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो इसमें मेनली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा स्किल सेक्टर्स में. ठीक है, हाई स्किल सेक्टर्स, इंजीनियर्स, एरोस्पेस इंजीनियर्स मेनली. ठीक है, space space engineers, biotechnology, multiple things, but still mainly skilled employment. Encourage private investments. Private investors भी encourage होंगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए. ग्रोइंग और स्पेस टेक इकोसिस्टम भी अपना बेटर होगा. नाउ तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि ना इसरो वर्क्स इंडिविजुअली, बट नहीं, इसरो के पास भी जो कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आए उसमें कंट्रीब्यूशन था प्राइवेट इंडस्ट्रीज का भी एंड अदर पीएसयूज का. सो इसमें से क्या हुआ कि nobody noticed first, but their shares also, the share prices of these companies also increased after the success of Chandrayaan 3 mission. So these are some like Lin India, Centrum Electronics, Aventel, L&T, Bell. These industries, these provide small different kind of components the to ISRO. Okay, so these industries are also linked to the success of space programs of India. Okay, what will this do? If as these industries grow, so will the space tech startups. तो स्टार्टअप कल्चर भी बढ़ेगा. स्टार्टअप कल्चर में जो स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं उनको भी ग्रोथ में हेल्प मिलेगी बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3. सो वी आर मेंशनिंग चंद्रयान 3, बट अगर हम पूरी बात करें जैसे हमने 2013 में मिशन ऑन मार्स मंगलयान किया. ठीक है, ऑन अवर फर्स्ट अटेम्प्ट वी सक्सीडेड. उसकी वजह से भी हमारा क्या हुआ था, इंटरनेशनल स्टेचर बढ़ा था काफी. एबी स्पेस क्लब में एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग इसरो. नोबडी हैड डन दैट फीट कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स मिशन सक्सेसफुल हुआ. तो उससे हमारी जो इंडस्ट्री की वैल्यू बढ़ती है और स्पेस जो हमारे स्पेस सर्कल में एलीट कैटेगरी में हम जो आ जाते हैं उससे इंडस्ट्री को भी हेल्प होती है. एंड ऑब्वियसली हमारी सोवरेनिटी भी बूस्ट होती है क्योंकि व्हेन वी आर टेकिंग अप द मिशंस इंडिविजुअली ऑन आवर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ नासा और रशिया और जापान, अगर हम खुद से कोई मिशन करते हैं तो ऑब्वियसली इट बूस्ट द सोवरेनिटी ऑफ अवर कंट्री. सोवरेनिटी क्या कि जो चीजें हम खुद से कर सकें विदाउट द हेल्प ऑफ एनी आउटसाइडर. वी डू नॉट ओ एनीवन, सो इट बूस्ट द सोवरेनिटी ऑफ अवर कंट्री. इट टेक्स अस टू इंटरनेशनल इम्पैक्ट. ठीक है, यहाँ पे एक पॉज लेते हैं. अभी तक में क्या डाउट्स हैं? किसी को कोई डाउट्स? नो सर. ओके, चलो इंटरनेशनल इम्पैक्ट में आते हैं. अभी जैसे बोला मैंने, एंट्री टू एलीट स्पेस क्लब. सो इंडिया became the fourth country in history to complete a soft landing on moon after the US, Russia and China. ठीक है, there are only 4 countries who have landed safely on the moon. ये तो एक एलीट स्पेस क्लब हो गया, बस 4 लोग ही है इसमें. एनहेंस्ड ग्लोबल रेपुटेशन. इंडिया की रेपुटेशन वैसे ही आफ्टर any mission on Mars has increased, but after this mission, the reputation has taken a big leap.
that ISRO can do such missions, such big scale missions on its own. And some other thing about ISRO is that ISRO taken has been taking missions like launching the satellites of other countries like Indonesia, France, even France which has a big space ecosystem. But क्योंकि इकोनॉमी अच्छी है हमारी, कम बजट में करते हैं, so other countries, because mostly other countries are dependent on private sector, and private sector is costly. So they are also looking for the avenues where they can use a cheaper way to send their satellites in the space. So that's how when we do these missions, तो इसरो की वैल्यू के साथ साथ हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है. Okay, boost to sovereignty. As I said, independent achievements like that prove India is far more technologically advanced and carry out complex missions like this on its own. So this was a complex mission और इंडिया ने ये अचीव किया, तो इससे हमारी वैल्यू बढ़ गई कि इंटरनेशनली. अब बूस्ट टू स्पेस डिप्लोमेसी. स्पेस डिप्लोमेसी क्या, जैसे नॉर्मल डिप्लोमेसी है, सो स्पेस डिप्लोमेसी, स्पेस में अगर कभी भी स्पेस की बातों पर डिस्प्यूट होता है तो इंडिया की वहां पे भी बात की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज इंडिया कैन सेंड मिशंस इंडिविजुअली टू द मून एंड टू मार्स. तो अभी कोई nobody can bully us into doing what they want. Okay, to lead these US and Russia are big players. If whenever there comes a talk about space, if they have bigger technologies and more far advanced technologies, so they may say कि नहीं हमारा space पे इतना right है. This this can be talk this can be talked about. I guess मतलब 2-4 साल में ऐसा होने लगेगा. यहाँ स्पेस में भी, क्योंकि यहाँ तो जमीन कब्जा करने के लिए बची नहीं. So there will be space conquerors. So at that time ये जो स्टेचर है इंडिया का वो भी काम आएगा. So the mission has enhanced India and ISRO reputation further. और हम इसको इसके यूज भी कैसे कर सकते हैं अपने लिए भी, कि अगर हम नेबर्स की भी हेल्प करें, ठीक है, बीइंग द बिगर एंड मोर फार टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेबर, हम अपने नेबर्स की हेल्प कर सकते हैं. उससे हमारी डिप्लोमेसी को बूस्ट मिलता है, हमारी रेपुटेशन बढ़ती है. तो हम अदर सेक्टर्स में इस सेक्टर में हेल्प करके अदर सेक्टर्स में उनकी हेल्प ले सकते हैं. ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए इंटरनेशनल इम्पैक्ट के, क्या क्या इंटरनेशनल इम्पैक्ट होते हैं इंडिया के स्पेस मिशन. ठीक है, नॉट जस्ट चंद्रयान, जो भी स्पेस मिशन होंगे, जो कॉम्प्लेक्स मिशन होंगे, जिसमें भी अचीवमेंट्स होगी इसरो की, उसके थ्रू ये हमारे पास अचीवमेंट्स होंगे. तो हम अब आते हैं कि जब, अब देखो, अभी हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए चंद्रयान के, ठीक है. अब इसके बाद देखते हैं कि कैसे हम जो एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, क्या हम ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. जो मिशन है किसी भी स्पेसक्राफ्ट का, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेसक्राफ्ट. मिशन डिटेल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. फॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स. तो ये एक क्वेश्चन हो गया. ये इवॉल्व लीसा से पूछा गया था 2016 में. ऐसे ही मंगलयान का क्वेश्चन है, 2016 में मंगलयान से पूछा गया. ठीक है, मंगलयान में क्या पूछा कि देखो, द सेकेंड कंट्री टू हैव स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए. ये सारे पॉइंट्स, तो ये भी इन क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है. ओके, तो अब मेंस मेंस में देखो, मेंस के क्वेश्चन जो है, अब इनको रीड करो. क्या हमने जैसे पढ़ा इसको चंद्रयान को, कैन वी आंसर दिस क्वेश्चंस? अगर if we apply the same logic to these questions, India has achieved remarkable success in unmanned space mission, including the Chandrayaan and Mars orbital mission.
but has not ventured into manned space missions, both in terms of technology and logistics. Explain critically. ये 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, नॉट वेंचर्ड इनटू मैन्ड स्पेस मिशंस। अभी हम वेंचर कर रहे हैं, वी हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप yesterday, we have tested the safety features of गगनयान। तो यहाँ से जब चंद्रयान को हमने पढ़ा, तो चंद्रयान में हमने पढ़ा कि क्या क्या हम कहाँ कहाँ से ग्रो हुए हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम चंद्रयान एंड नाउ वी हैव सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून। ठीक है, बट अभी हमारे पास, क्योंकि अब क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है, लो बजट। ठीक है, बजट जब लो रहता है तो टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को जब आप चंद्रयान की अप्लाई करोगे तो मीन्स ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। मीन्स 2016 का भी देखो, डिस्कस इंडियाज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इंडिया इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस है इन क्वेश्चंस का। तो हमें लगता है कि हाँ, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को हम इन चीजों से कैसे रिलेट करें। तो जैसे मैंने बताया, इन चीजों से समझ आया कि कैसे रिलेट करेंगे। सारे एस्पेक्ट्स, एक ही मिशन का कोई भी मिशन होगा उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा आज का ये सेशन चंद्रयान का यही था। अब आप लोग के अपने डाउट्स बता दो मुझे। सर लैंडर और रोवर दोनों क्या रिटर्न हुए थे? नहीं, रिटर्न मिशन अभी हमारे पास नहीं है, रिटर्न की कैपेबिलिटी नहीं है, तभी हम गगनयान, नेक्स्ट जो स्टेप होगा, वी आर, पहले हम प्लान कर रहे थे विद जापान, लूपेक्स या लूनेक्स कुछ नाम है, 2024 में। दैट मिशन वाज टू, कि हम जाके वहां से सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करके वापस दिला सकें। लेकिन अभी वो मिशन अकम्प्लिश नहीं हुआ है। तो पहले वही होगा, बिकॉज गगनयान में क्या करेंगे, गगनयान जो डेवलप कर रहे हैं उसमें पहले एक रोबोट भेजा जाएगा। क्योंकि जब वो सक्सेसफुल होता है उसके बाद ही मैंड मिशन भेजा जाएगा। तो अभी वो तो रिकवर मिशन ही नहीं था, नहीं रिकवर करना मिशन था, 41 वन लूनर डे, यानी कि 14 अर्थ डेज। एक लूनर डे का मिशन था वहाँ पे, 14 दिन का। 14 दिन के बाद वो, क्योंकि जितनी भी उसमें कैपेबिलिटी थी, मतलब जितनी बैटरी थी, समझ लो बैटरी उसकी खत्म हो गई। और वो क्योंकि ब्लैक जोन में है, वहाँ पे सनलाइट नहीं है, तो सोलर पैनल्स भी काम नहीं आएंगे। तो जिस 14 दिन जो भी उसने डेटा ट्रांसफर किया, वही था लैंड रोवर का। अभी काम खत्म हो चुका है। हाँ कृतिक। सर जैसे इसके डिफरेंट पेलोड्स होते हैं, तो अगर हम आंसर में कोई पेलोड मेंशन करते हैं तो डू वी हैव टू मेंशन द फुल फॉर्म ऑफ इट और वी कैन यूज द शॉर्ट फॉर्म्स? शॉर्ट फॉर्म्स तभी यूज करो जब आपको ये पता हो उसका यूज क्या है। इफ यू आर मेंशनिंग द पेलोड, अगर हम्म। यूज पता है कि, या फिर ऐसे हम्म। रैंडम, इफ यू आर मेंशनिंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड द मेटलर्जी, द केमिकल composition of the surface of the moon, we have used ELSA and chased this। ठीक है, तो ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं होगी। फुल फॉर्म यूपीएससी वैसे पूछता भी नहीं फुल फॉर्म क्या है, कि जैसे कभी कभी, बिकॉज प्रीलिम्स में तो पता ही लास्ट ईयर भी कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो हमें हर एस्पेक्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए जस्ट मैंने इसलिए पुट किया है यहाँ पे विद द फुल फॉर्म्स, क्योंकि यूपीएससी का कोई पता नहीं प्रीलिम्स में वो क्या पूछ ले, इसके लिए मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, और कोई। सर ये लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब होता है? लॉजिस्टिक्स, जो भी आप लॉजिस्टिक्स क्या होती है नॉर्मल सेंस में, जो आप ले जाते हो, वट एवर यू कैरी, हम्म। दैट्स द लॉजिस्टिक्स। तो पेलोड इज अ काइंड ऑफ लॉजिस्टिक, टेक्निकल लॉजिस्टिक।
लॉजिस्टिक्स, देखो लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि व्हेन यूर सिंपल वर्ड्स में, व्हेन यूर पैकिंग फॉर अ ट्रिप, ठीक है, देयर विल बी सूटकेस, देयर विल बी क्लोथ्स, ठीक है, देयर विल बी ट्रैवल टिकट्स। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो लॉजिस्टिक्स में आती हैं कि आप ट्रैवल कैसे कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर चंद्रयान पे करें, तो लॉजिस्टिक्स की चंद्रयान की, कि हाउ विल द रॉकेट रीच द स्पॉट श्री हरिकोटा, फिर वहाँ से कैसे, उसमें क्या क्या होगा, पेलोड्स होंगे, कब लॉन्च होगा, कितने टाइम पे लॉन्च होगा, कितने टाइम बाद वो वहाँ से इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, इतने जो भी है, सारी चीज़ें वो सब लॉजिस्टिक्स में आती हैं, सारी जो भी डिटेल्स हैं ट्रैवल इटनरी की तरफ। ओके। ठीक है। ठीक है, तो मेन पर्पस इसका यही था कि ये जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट में दिए हैं, देखें ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको आप कैसे आंसर कर पाओगे। कि सिर्फ हमने बहुत न्यूज़ में देखा चंद्रयान 3 की सक्सेस के बारे में, कि चंद्र हाउ वाज दिस अ वेरी सक्सेसफुल मिशन, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि आपको बहुत तारीफ करनी है। क्रिटिकली एक्सप्लेन क्रिटिकली का भी क्वेश्चन है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द शॉर्टकमिंग्स एज वेल, कि क्या क्या भी कमी है, क्या क्या पूरी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें स्पेस मिशन में आगे काम आएंगी। ठीक है, आगे भी मैं और लूंगा, नॉट जस्ट स्पेस मिशन, अदर चीज़ों के लेक्चर्स भी लूंगा टू कवर अप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। ठीक है, बाकी लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहीं खत्म करता हूँ फिर। कोई क्वेश्चन हो तो बता दो, टारगेट रिलेटेड भी हो तो। टारगेट रिलेटेड है किसी का? नहीं है।